Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are safe and fine in this pandemic by the grace of Allah Azza wa Jal. Today we are going to start our term 2, lesson number 1 of subject science. Okay, it's our lesson number 1 of subject science. And the name of the topic is heat. I'll repeat, the name of the topic is heat and it's our lesson number 1. Dear students, now open your books, page number 76. And the name of the topic, as I told you, heat. Okay, it's on page number 76. In this chapter, we will learn about heat. What is heat? We will learn about matter, atoms, temperature, etc. Okay. First of all, we will discuss about what is heat. Heat क्या होती है? What is heat? Heat is a form of energy. Heat जो है क्या है? Is a form of energy. ये एक तरह की energy है. And where does we get this energy from? What is the main source of heat? So the sun, जो सूरज है, the sun is our main source of heat. The sun is our main source of heat. Okay. We measure how hot or how cold something is with a thermometer. किससे नापते हैं हम टेम्परेचर? थर्मोमीटर से नापते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, इट्स पार्टिकल्स, जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर. तो उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं. When we cool an object, लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, its particles move very slowly. तो उसके पार्टिकल्स बहुत स्लोली मूव करते हैं. ओके, हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट थिंग्स. अब हीट अलग चीज़ है और टेम्परेचर अलग चीज़ है. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. Now dear students, come now we read about matter. What is matter? Okay, and all matter is made of atoms. जितना भी जो matter है वो किससे बने हैं? वो atoms से बने हैं. Everything that has weight and occupies space is called matter. कोई भी चीज़ which has its own weight and which occupies some space is called matter. Okay, matter is made up of tiny invisible particles called atoms. matter जो है वो बनता है या बना है up of tiny यानी कि बहुत छोटे, invisible जो कि हम जिसे देख नहीं सकते, particles which is called atoms. और उन्हें हम क्या कहते हैं? These particles are known as atoms. These particles keep moving all the time. और ये particles हर वक्त move करते रहते हैं. Okay? However, they do not all move or vibrate at the same speed. लेकिन ये नहीं है कि जितने भी atoms हैं वो एक ही speed पे move करेंगे. Some particles move faster and some move more slowly. कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत फास्टर मूव करते हैं और some move more slowly. कुछ जो है वो बहुत स्लोली मूव करते हैं. When we heat an object, its particles start moving faster. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, उसको गर्म करते हैं, the particles present in it, उसमें जो भी particles present होते हैं start moving faster. तो उनकी जो movement है वो बहुत fast हो जाती है, वो बहुत तेज़ फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं. But
लेकिन when we cool an object, लेकिन हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, its particles move more slowly. तो जैसे ही आप उसको ठंडा करेंगे उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्लोली मूव करना शुरू करेंगे. मतलब अगर आप उसको किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स फास्टर मूव करेंगे, और इफ़ यू कूल एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल मूव मोर स्लोली. Dear students, as you see described in this picture, before heating at room temperature, अगर कोई भी चीज़ है जिसको जो है एक रूम टेम्परेचर पे अगर होगी तो उसके जो है पार्टिकल्स किस तरह दिखेंगे, एंड आफ्टर हीटिंग, और जब आप उसको गर्म करेंगे, जब आप उसको हीट अप करेंगे किसी भी चीज़ को, तो फिर उसके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो इसमें आपको दिखाई गई है कि वो किस तरह फास्ट मूव करने लगेगी. ठीक है, जब रूम टेम्परेचर होंगे तो मतलब वो कांस्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करेंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट अप किया तो उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिफोर हीटिंग एट रूम टेम्परेचर और आफ्टर हीटिंग. Now students, come to page number 77. Now we read about temperature. What is temperature? As I told you, there is a big difference between heat and temperature. Okay? Temperature is the measure of the average energy of particles. I repeat, temperature is the measure of the average energy of particles. Put more simply, temperature is how hot or cold something is. टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट है एक, जिससे आपको पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है या ठंडा है. और सिंपल वे में हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़. टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है. टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो उसके ये फ़र्क, मतलब साइज़ अगर किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट का है इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ वाटर एंड अ बकेट ऑफ वाटर. अगर किसी एक कप में पानी हो या किसी एक बकेट में पानी होगा, कैन हैव द सेम टेम्परेचर, तो उन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा. ये नहीं होगा कि कप में अगर कम पानी है और बकेट में ज़्यादा पानी है तो कम का कम टेम्परेचर होगा या ज़्यादा का ज़्यादा टेम्परेचर होगा. ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो है वो इसमें साइज़ की वजह से कोई भी टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ता. टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. दो ऑब्जेक्ट अगर सेम टेम्परेचर पे रखे हुए होंगे, they have different amount of heat energy. Which of these do you think has more energy? इन दोनों पिक्चर्स में से आपको क्या लगता है कि किस में ज़्यादा एनर्जी होगी? नंबर 1, अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन. एक पानी का ग्लास रखा हुआ है. दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर विच इज पुट इन डायरेक्ट सनशाइन. सूरज की रोशनी में रखा हुआ है. और a glass of water in the freezer compartment of a refrigerator. या तो एक ग्लास ऑफ वाटर जो रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर के फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में. To answer this question, you will have to think about the movement of particles. इस सवाल का जवाब आपको कैसे मिलेगा? आपको इस तरह मिलेगा कि आपने देखना है, आपने रिकैप करना है अपना, कि क्या गर्म हॉट चीज़ों में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होती है या कोल्ड में होती है. And as I told you, and we get this answer of this question, as I told you earlier, when we heat an object, its particles start moving faster. Okay students, as I told you earlier, when we heat an object, its particles start moving faster. Okay, and when we cool an object, its particles move more slowly.
What is the question given here? In which of the above container are the particles moving faster? The answer is the particles in the liquid that is being warmed by the sun. वो लिक्विड जिसके जो गर्मी मतलब जो हॉट हो गया है सन की वार्म की वजह से, will be moving faster than those that are freezing into a solid. गरम जो है ऑब्जेक्ट, जो सूरज की गर्मी की वजह से जो ऑब्जेक्ट गरम हो गया है उसके पार्टिकल्स मूव फास्ट करेंगे बजाय के उस ग्लास ऑफ वाटर के जो फ्रीज़र में फ्रीज हो गया है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वी रीड अबाउट हीट. व्हाट इज हीट? वील discuss about heat. As you now have a good understanding of what temperature is. अब आपको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर क्या है. Let us now discuss what heat is. अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हीट के बारे में. पहले हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के बारे में और अब हम डिस्कस करेंगे हीट के बारे में. ओके. द हीट an object contain is the total amount of thermal energy it has. Heat is the transfer or flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object. Okay, what does it means? It means कि the heat an object contain, जितनी एक ऑब्जेक्ट में जितना भी हीट अप है, जितनी भी हीट है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, वही उसकी थर्मल एनर्जी कहलाएगी. ओके. हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी. हीट क्या है? ट्रांसफर है या फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट पे. थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी. अब थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हीट. थर्मल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो हमें किससे हासिल होती है? हीट से हासिल होती है. अ कप ऑफ हॉट टी हैज़ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स. एक कप ऑफ जो चाय है, एक जो चाय का कप होता है, अ कप ऑफ हॉट टी हैज़ थर्मल एनर्जी. उसमें क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है. किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स. किस फॉर्म में होती है? उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट के फॉर्म में होती है. सम ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल्स, और उसकी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इन द कोल्ड मिल्क, ठंडे दूध में, दैट यू ऐड टू मेक द टी कूलर, जो हम गर्म चाय में ऐड करते हैं चाय को थोड़ा ठंडा करने के लिए. सो दिस एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम one object to another. Now students, come on page number 78. We will continue the topic. When you take out an ice cube from the freezer, जब हम एक आइस क्यूब को फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं, what happened to it? क्या होता है उसके साथ? It gradually melts and change into liquid. वो आहिस्ता आहिस्ता, gradually यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है and changes into liquid. और किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? Since the air around the ice cube is warmer. क्योंकि आइस क्यूब के इर्द गिर्द जो एयर है वो क्या होती है? वार्मर होती है. एंड हीट फ्लोज फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, और हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. इट मेल्ट्स द आइस क्यूब. इस वजह से आइस क्यूब जो है क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है. हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स. हीट कैन इवेपोरेट लिक्विड्स. हीट इज मेजर्ड इन जूल्स. इसका क्या मतलब है? हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स. हीट की वजह से सॉलिड चीज़ें भी मेल्ट हो जाती हैं, जस्ट लाइक आइस क्यूब, जस्ट लाइक बटर. हीट कैन इवेपोरेट लिक्विड. जब हम पानी को, लिक्विड को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है. एंड हीट इज़ मेजर्ड इन जूल्स. और हीट को हम किस में मेजर कर सकते हैं? इसका यूनिट क्या है? जूल्स. एज यू सी इन दिस पिक्चर, व्हेन बटर, जस्ट लाइक आइस, व्हेन बटर इज़ हीटेड, जब आप बटर को गर्म करेंगे, हीटेड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो
मेल्ट हो जाएगा, इट मेल्ट्स। व्हेन बटर इज हीटेड इट मेल्ट्स। Okay, now we read about thermometer. What is thermometer? First of all, I want to show you the picture of thermometer. Dear students, see, this is the thermometer. As you will also saw in your homes, आप लोगों के घर में भी होगा ये thermometer, जिसकी वजह से आपका temperature check होता है. This is called thermometer. Okay, let's start. How do we know that the temperature is high or low? हमें कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर हाई है या लो है? कैसे पता चलता है? An instrument called a thermometer. एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है थर्मामीटर, is used to measure the temperature. उसे हम यूज़ करते हैं क्या मेजर करने के लिए? Yes, टेम्परेचर मेजर करने के लिए. A thermometer is made of transparent glass. ये किससे बना है? As I'll show you the picture again. It is made up of transparent glass. This is the glass. At one end of the thermometer there is a bulb. और इसके एक एंड पे एक बल्ब लगा हुआ होता है. This bulb contain a liquid which can be mercury or alcohol. और just like a bulb, जिसमें या तो mercury भी हो सकता है या alcohol भी हो सकता है. When the air around the thermometer, जब air इस thermometer के around जो है वो move करती है, gets hot, तो क्या होता है? ये गर्म हो जाता है. The liquid inside the thermometer begins to expand. और इसमें जो liquid होता है वो क्या होता है? गर्मी की वजह से expand करना शुरू कर जाता है. It moves upward inside. और expand करके वो क्या करता है? ऊपर की तरफ upward move करने लगता है. Inside the tube. जैसे ही ये गर्म होता है तो expand होता है और ये ऊपर की तरफ इस ट्यूब में move करने लगता है. When the air is cold, लेकिन जब इसके इर्द गिर्द हवा जो है वो ठंडी होगी, कोल्ड होगी, the liquid contracts and moves downward. तो क्या होगा? यही लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जब अगर आपको बुखार होता है तो क्या होता है? थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, आप गर्म हैं तो ये लिक्विड एक्सपेंड होगा और ये लाइन जो है वो रेस करना शुरू कर देगी और बताएगी आपको जितना भी टेम्परेचर है. लेकिन जब टेम्परेचर को देखने के बाद जब हम उसको जो है वो ठंडे पानी में डालेंगे या उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका लिक्विड और ये जो लाइन है ये नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव करने लगेगी. ओके, सो व्हेन इट मूव्स अपवर्ड, ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगा. व्हेन जब गर्म होगा, जब इसके आसपास उसको वार्म फील होगा तो वो अपवर्ड एक्सपेंड होगा और अपवर्ड मूव करेगा. और जब वो उसके आसपास की हवा ठंडी होगी तो द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी रीड अबाउट रीडिंग द मार्क्स ऑन द थर्मामीटर. There are marking called a scale along the sides of the glass tube of a thermometer, as I show you. Okay, this is the glass tube. There are marking called a scale along the sides of the glass tube of a thermometer. Marking दिख रही है आपको ये? We measure temperature by reading these marks. और हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं इन्हीं मार्क्स को रीड करके, इन्हीं की मदद से. ईच मार्क ऑन द थर्मामीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री. और हर ये एक मार्क जो है ये 1 डिग्री के बराबर है. These are read on 2 different scales. और ये 2 अलग अलग स्केल्स पर रीड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, क्या है? एक स्केल है सेल्सियस स्केल एंड द अदर वन इज फ़ारेनहाइट स्केल. द सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड एंड वी राइट इट लाइक degree centigrade. Okay, as I'll show you, Celsius and Fahrenheit. The Celsius scale is also called centigrade and we write it like this. किस तरह लिखते हैं हम उसे? इस तरह लिखते हैं. On the Celsius scale, ice melts at 0 degree. Ice कब मेल्ट हो जाती है? 0 डिग्री पे, सेंटीग्रेड. On the Fahrenheit scale, लेकिन Fahrenheit scale पे the melting point of ice is 32 degree Fahrenheit. Similarly, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री. प्योर वाटर जो है वो बॉयल कितने डिग्री पे होता है? 100 डिग्री पे होता है ऑन द सेल्सियस स्केल एंड 212 डिग्री ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल.
You can see both of the scales on the side of the liquid in the glass tube. Dear students, you can see the both of the scales on the side of the liquid in the glass tube. This one and this one also. Any temperature on the Celsius scale which is less than that of melting ice 0 degree centigrade is written with a minus sign. जब भी -0 डिग्री से नीचे आएगा तो माइनस साइन लगाएंगे. Nothing can get colder than -273 डिग्री सेल्सियस. और इसकी जो मैक्सिमम रेंज क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कोल्डर नहीं हो सकता. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. और इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो. द नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. और हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट. एक स्केल पे 37 डिग्री सेल्सियस कहेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, और फ़ारेनहाइट के स्केल पे 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ थर्मामीटर. व्हेन यूजिंग अ थर्मामीटर हैंडल इट केयरफुली. जब भी हम थर्मामीटर यूज़ करें तो वी शुड हैंडल इट वेरी केयरफुली एंड स्टोर इट प्रॉपरली. और उसको अच्छी तरह अच्छी जगह प्रॉपर एंड सेफ जगह पे रखें. अवॉइड टचिंग द बल्ब. उसको किसी बल्ब से टच ना करें. नेवर प्लेस द एंड ऑफ द थर्मामीटर इन एन ओपन फ्लेम. और कभी भी थर्मामीटर के एंड को किसी भी ओपन फ्लेम खुली आग की तरफ ना लेके जाएं. इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एडल्ट इफ़ अ थर्मामीटर इज़ डैमेज इन एनी वे. और कहीं भी अगर थर्मामीटर डैमेज हो, टूटा हो, तो फ़ौरन अपने बड़ों को इसका बताएं कि ये भाई टूट गया है या ख़राब हो गया है या डैमेज हो गया है, बिकॉज इट विल हार्म यू. अगर आपने नहीं बताया और उसके साथ कुछ आपने काम करने किया, कुछ भी आपने किया, तो वो क्या होगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है. सो प्लीज़ हैंडल इट केयरफुली एंड स्टोर इट प्रॉपरली.